Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 5 and you have already studied the lecture number 4. If any difficulty or any question you can ask on WhatsApp or email. Dear students, effect of hydrostatic pressure on reaction rate. Consider the following reaction, that is A plus B, दो reactant हैं, they form an activated complex AB star with the rate constant K1, and this activated complex decomposes to product P with the rate constant K2. If the volume of the activated complex is less than that of the reactants, then the change in volume of activation, that is volume of activated complex minus the volume of reactant, will be negative, indicating that a high pressure will shift the equilibrium towards right and the rate of reaction will increase. That is कि अगर वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन जो है वो नेगेटिव हो, दैट इज़ वॉल्यूम एक्टिवेटेड माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, अगर वो नेगेटिव हो, ये इंडिकेट करता है दैट हाई प्रेशर विल शिफ्ट द एक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. If the volume of activated complex is greater than that of reactants, then volume change will be positive, and in this case an increase in pressure will shift the equilibrium towards left, decreasing the rate of reaction. Again, consider the following reaction, A plus B. This will give you the intermediate product, that is the activated complex AB star, which then decomposes to product P. A plus B rate constant K1 के साथ activated complex फॉर्म करते हैं, और ए बी कम्प्लेक्स जो है वो जब डीकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट के साथ तो उसका रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स is less than that of the reactants, then the change in the volume of activation, that is the volume of activated complex minus the volume of the reactant, will be negative, indicating that high pressure will shift equilibrium towards right and the rate of reaction will increase. If the volume of the activated complex is greater than that of reactants, then the volume change will be positive, and in this case an increase in pressure will shift the equilibrium towards left, decreasing the rate of reaction. Now, according to the transition state theory, we know that K2 that is equal to
के बी इंटू टी ओवर एच इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर टी. That is, according to the transition state theory, we know that K2, that is the rate constant जो है, that is equal to KB into T over H into e की पावर minus delta H star over RT. Now, dear students, taking the log on both sides of the above equation, ये ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी है K2 is equal to KB into T over H into e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार ओवर RT, इसका अगर आप लॉगरिथम लें then we will get K2 का log K2 हो जाएगा प्लस log of KB into T over H minus delta F star over RT. अब जो है log जो है इसमें पहले का KB into T over H का log बन गया और e की पावर माइनस डेल्टा जो है इसका जब हम log लेंगे log और e के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा सिंपली माइनस डेल्टा F स्टार ओवर RT. F या H एक ही बात है. नाउ log K2 इसको आप फर्दर रीअरेंज करें. log KB इंटू T ओवर H माइनस 1 ओवर R, डेल्टा F स्टार को हम लिख सकते हैं F स्टार माइनस FR. FR जो है वो फ्री एनर्जी है उसकी रिएक्टेंट की, जबकि F स्टार जो है दैट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया. log K2 दैट इज इक्वल टू log KB इंटू T ओवर H माइनस डेल्टा F स्टार ओवर RT. इसको हमने इस तरह रीअरेंज किया. डेल्टा F स्टार को हमने लिख दिया है F स्टार माइनस FR, दैट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. दैट इज इक्वेशन बन गई है आपके पास. log K2 दैट इज इक्वल टू log KB इंटू T ओवर H माइनस 1 ओवर RT इंटू F स्टार माइनस FR. अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दैट इज डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. देन वी विल गेट partial log K2 over partial T, that is equal to ये log K2 KB इंटू T ओवर H, इसकी जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है? ज़ीरो के बराबर. दैट इज कि log K2 ओवर पार्शियल P दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर RT partial F star over partial P over into T minus partial F star minus partial T partial P ब्रैकेट के बाद T at the constant temperature. यानी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को, अब इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है log K2 partial log K2 over partial P that is equal to 0 minus R1 over RT. इसको हमने बाहर कॉमन कर लिया है इसकी, क्योंकि इस कांस्टेंट की नहीं होनी डिफ्रेंशिएशन, तो उसकी हमने डिफ्रेंशिएशन की है. तो ये हो गया पार्शियल F स्टार ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर T माइनस पार्शियल F
R over partial P at constant temperature T. Since the rate of change of free energy will represent with respect to pressure at constant temperature is equal to the volume, तो हम फिर इक्वेशन को लिख सकते हैं कि पार्शियल log K2 over partial P at constant temperature, that is equal to 1 over RT partial into V star minus VR. V star जो है that is the volume of the activated complex and VR that is the volume of reactant. तो इक्वेशन बन गया आपके पास partial log K2 over partial T that is equal to minus 1 over R partial V square minus VR, partial log K2 बटा partial P at constant temperature that is equal to minus 1 over RT into delta V star. Delta V star that is equal to the change in the volume of the activity. अब इसके हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स इक्वेशन के. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इन द अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, तो ये हो जाएगा पार्शियल लॉग K2 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर RT डेल्टा V स्टार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल P. इस क्वेश्चन की हमने इंटीग्रेशन करनी है. पार्शियल लॉग K2 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर RT डेल्टा V स्टार इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल P. जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पार्शियल जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर रहेगा सिर्फ लॉग K2 दैट इज इक्वल टू पार्शियल P की इंटीग्रेशन हो जाएगी P. जब पार्शियल P की हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका आंसर आएगा P. तो हम इसको लिख सकते हैं P ओवर RT इंटू डेल्टा V स्टार प्लस कांस्टेंट. ये कांस्टेंट जो है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Applying this the initial conditions, that is when P is equal to 0, when P is equal to 0 then K2 is equal to K2 naught. The above equation to the above equation हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये log K2 0 बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट. अब जो ऊपरी इक्वेशन अप्लाई इनिशियल कंडीशन की है हमने कि व्हेन P इज इक्वल टू 0 तो K2 जब K0 नॉट के बराबर है टू दी अबव इक्वेशन, तो हमें मिलता है कि log K2 नॉट जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा. और ये वैल्यू जो है हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन की इंपोर्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी log K2 दैट इज इक्वल टू P ओवर RT डेल्टा V स्टार प्लस log K2. देखें दोबारा, अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस व्हेन P इज इक्वल टू 0, जब P 0 होगा तो ये सारी क्वांटिटी P ओवर RT डेल्टा V स्टार ये 0 हो जाएगी और log K2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा log K2 0 के. तो ये इक्वेशन में आप में हम ऊपर वाले में पुट करते हैं, तो इस log K2 नॉट जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन ऑफ इंटीग्रेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
log K2 that is equal to P over RT डेल्टा V स्टार प्लस कांस्टेंट की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं log K2 स्टार, या log K2 स्टार को हम दूसरी तरफ ले जाएं, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो वह हम लिख सकते हैं log K2 बटा log K2 स्टार एंड नॉट दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V स्टार डेल्टा V स्टार P ओवर RT। आप इस क्वेश्चन log K2 को इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं इसको कि log K2 बटा K2 नॉट स्टार, तो इसको हम एक लिख सकते हैं log K लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अभी हमने जो डिराइव की है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वेयर log K2 is the dependent variable and P is the independent variable। log K2 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि P जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसका log K का हम ग्राफ ड्रा करेंगे P के वर्सेस, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ए प्लॉट ऑफ log K वर्सेस P gives a straight line, the slope of which can be used to calculate change in volume। इस क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन आई है, इसका जो स्लोप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कहा कि क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी रही, इसमें log K2 जो है K जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड P जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम log K वर्सेस P इसका प्लॉट ग्राफ ड्रा करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस लाइन का स्ट्रेट लाइन जो इसका जब आप स्लोप लेंगे दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन volume of activation। It is, dear students, it is evident from question 2 that if the volume change is negative, if the volume change is negative, then an increase in pressure increases the value of K2। यानी अगर वॉल्यूम चेंज की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, वेयर एज ए पॉजिटिव वॉल्यूम चेंज काजेज द रेट कांस्टेंट टू डिक्रीज। अगर इसकी वैल्यू वॉल्यूम चेंज की वो पॉजिटिव आए तो वो रेट कांस्टेंट को वो डिक्रीज करता है और विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड हैंस उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो वो भी डिक्रीज हो जाता है। स्लोप जो है इसका बराबर है स्लोप इनटू RT। इसमें 3 केसेस आते हैं। पहला केस है व्हेन V स्टार इज नेगेटिव, वॉल्यूम चेंज जब वो नेगेटिव हो, देन फ्रॉम क्वेश्चन 2 द रेट कांस्टेंट K2 विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। पहला केस है कि अगर वॉल्यूम चेंज जो है वो नेगेटिव हो तो क्वेश्चन 2 जो है इससे हमें तो पता चलता है कि रेट कांस्टेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग pressure। This situation is seen in those reactions where an increase in electrical charge takes place in going from reactants to activated complex। ऐसी सिचुएशन जो है हम देखते हैं उन रिएक्शन में
यहाँ पे इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको हम इंक्रीज करते हैं, वो होती है टेक्स प्लेस होती है इन गोइंग फ्राम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। जब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ऑर्डर SN1 solvolysis and reactions of alkyl halides with amines, ये इसकी एग्जांपल। Such types of reactions are known as slow reaction। तो ऐसे रिएक्शन जो होंगे वो स्लो रिएक्शन होंगे, आहिस्ता चलेंगे। इनकी पहला केस क्या है कि when volume change is negative, then from equation 2 the rate constant K2 will increase by increasing pressure. This situation is seen in those reactions where an increase in electrical charge takes place in going from reactants to activated complex. For example, फर्स्ट ऑर्डर SN1 solvolysis जो है रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमाइंस, ये इसकी एग्जांपल है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्लो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो होंगे वो यूजली स्लो होते हैं। केस नंबर 2, व्हेन V स्टार जो है डेल्टा V स्टार इज नेग्लिजिबली स्मॉल, देन फैक्टर P इन इक्वेशन 2 विल बी सो स्मॉल टू बी निगलेक्टेड। उसको फिर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हेंस लॉग K बराबर हो जाएगा लॉग K नॉट के, ये कांस्टेंट होगा। तो रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो उस वक्त रेट कांस्टेंट या वो प्रेशर से वेरी नहीं करे, उससे इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वॉल्यूम चेंज जो है वो नेग्लिजिबल हो, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल हो, तो इसमें फैक्टर जो P है इन इक्वेशन P विल बी सो स्मॉल टू बी नेग्लेक्ट, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हैंस लॉग K बराबर होगा लॉग K नॉट दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो उस वक्त रेट कांस्टेंट जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर के वेरी करने से रेट कांस्टेंट वेरी नहीं होगा। दिस सिचुएशन अराइजेस इन दोज रिएक्शंस इन विच एक्टिवेटेड complex possesses the same charge as the reacting species। इस किस्म की सिचुएशन जो है उस वक्त अराइज होती है उन रिएक्शन में जिसमें एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है उसका चार्ज जो है वो सेम होगा रिएक्टेंट स्पीशीज के साथ। यानी अगर रिएक्टेंट स्पीशीज और एक्टिवेटेड चार्ज जो कम्प्लेक्स जो है उसका चार्ज जो होगा वो सेम होगा, तो उस वक्त ये सिचुएशन अराइज होती है। फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन बिटवीन OH ions and primary alkyl halides, such reactions occur at normal rate। ऐसे रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रेट से वाक़ होगा। केस 2 ये हुआ कि जब डेल्टा V नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, देन फैक्टर P जो होगा इन इक्वेशन 2 विल बी सो स्मॉल, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हैंस लॉग K जो होगा वो लॉग K नॉट के बराबर होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दिस सिचुएशन अराइजेज in those reactions in which the activated complex possesses the same charge as the reactant species। For example, SN2 reaction between OH ions
and primary alkyl halides. Such reactions occur at normal significance of delta V star. Perrin explained the importance of delta V as follows. Number 1, for reactions between opposite ions, oppositely charged ions ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे या एक्टिवेट कम्प्लेक्स बनाएंगे और वो आगे डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में जाएगा. द ट्रांजिशन स्टेट विल हैव वीकर इलेक्ट्रिकल फील्ड. ट्रांजिशन स्टेट की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो वीक होगा, रिजल्टिंग इन टू रिलीज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स coordination, which give rise to positive and the values. Number 2, the reactions between same sign charges. The reaction between same charges, same sign charges जिनका साइन जो है सेम होगा चार्जेस उन रिएक्शन के लिए. In such reactions, the transition state will have stronger electrical field. उस वक्त transition state एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. That the reacting ions, this causes a decrease in volume and also a loss of degree of freedom, and hence causing a decrease of entropy negative. For reactions between same sign charges, in such reactions the transition state या activated complex will have stronger electrical field than that of reacting ions. This causes a decrease in the volume and also a loss of degree of freedom, and hence causing a decrease of entropy, that is entropy जो होगी भी उसकी नेगेटिव हो जाएगी. तीसरा है इसकी सिग्निफिकेंस, एस्टैब्लिशिंग ए मैकेनिज्म. This has been used to establish the reaction mechanism of reactants, providing the concept about the nature of the transition state. तो जो आपका नंबर 2 सिग्निफिकेंस है फॉर रिएक्शंस बिटवीन सेम साइन चार्जेस. अगर रिएक्शन जो है वो सेम किस्म के चार्जेस के दरमियान हो रहा है जहाँ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का साइन सेम होगा, इन सच रिएक्शंस द ट्रांजिशन स्टेट विल हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल फील्ड. उस वक्त ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वो स्ट्रॉन्ग होगा दैन दैट ऑफ द रिएक्टिंग आयंस. दिस अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो डियर स्टूडेंट्स, दिस causes a decrease in volume. तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा एंड आल्सो ए लॉस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लॉस होगी एंड हैंस काजिंग ए डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी, यानी कि वो नेगेटिव होगी. तीसरा इसका है कि एस्टेब्लिशिंग ए मैकेनिज्म. दिस हैज़ बीन यूज्ड, ये वॉल्यूम चेंज जो है डेल्टा वी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स. थैंक यू.